Warm greetings to everyone. With the grace of God, again we are together to hear the unheard stories from a very renowned personality among us. This is Divjot Kaur, your today's host. I am a second year university student at Dalhousie, Canada. I love to dance, paint, and play tabla. I am the social media coordinator and Canadian ambassador of Heads Youth League Association. I have had a wonderful journey in health since 2021 and have learned a lot from the managing director of HEADS, Dr. Aruna Vatkar, and my other mentors. HEADS, Harvest Educational Transformation Solutions, is registered with MSME, Government of India, in May 2017, ISO 9001 2015 certified. Another progressive turn in the launch of Heads Pratishta India Trust, NGO Foundation in 2021, where Heads aspires to empower women, children, and people across all genders, academic dropouts through education, develops knowledge, skill development, educational and corporate training, improving employability scope, assessment, and counseling projects. Heads is an education consulting and service company exclusively dealing with end-to-end education service provider pan India. Our team works with our educational institutions in planning, developing, and managing educational institutions that meet their vision, mission, and goals. Heads has more than a decade of experience setting up and running schools and preschools across the country. Transformation can happen only through focus and passion, apart from learning, teaching, and leadership. I am feeling proud to share that the true spirit behind such transformation is none other than Dr. Aruna Vatkar, ma'am. Dr. Aruna Vatkar is the founder and the managing director of Heads. She is the founder and chairperson of Heads Pratishta India Trust and resource person of Indianica Learning Private Limited, Britannica. Also, she is the advisory board member and mentor of Mount Literacy School and the advisory board member and chancellor of Green Eden Public School. Along with all this, she is also the president of Wiki Women's Indian Chamber of Commerce and Industry for Karnataka Training and Development Council. We always learn something new every time from our beloved ma'am, Dr. Aruna Vatkar. She is the true combination of beauty and brain. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Now, let me introduce the intellectual of the day, Miss Devinder Kaur, who is here to share her stories with us. She is a citizen of Michigan, USA, and is a retired teacher from KB. She is a great renowned singer and a musician. Also, she is a member of Varisht Nagri Kesari Award and alongside a radio artist. So, let me start with my first question. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं उत्सुक हूँ कि आप संगीत से कैसे जुड़ी और आपने आपके लिए क्या प्रेरणा स्रोत रहा। संगीत से तो मैं शुरू से जैसे 8-9 साल की थी, 47 में मैंने नूर जहां का गाना सुना था, तो वो मुझे बड़ा इम्प्रेस करा। उसके बाद तो फिर लता जी का, आशा जी का सुनती रही थी। इनके गाने मुझे जैसे इंस्पायरिंग मिलता रहा, इनसे इंस्पायर होती रही मैं, तो मैं गाना गाती रहती अपने छुप छुप के। मेरे पेरेंट्स तो लाइक करते थे बट प्रोफेशनली लाइक नहीं करते थे, राइट। तो फिर मेरी शादी हुई, तब मेरे फादर ने मैंने अलाउ किया, तो मैं अपना संगीत ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। और म्यूजिक इज माय लाइफ। आई अप टू दिस एज, तब अब तक भी मैं गाती हूँ और गाती रहूंगी, गाती गाती ही इस दुनिया से जाऊंगी। यस। बहुत बहुत प्यारी बात बोली आपने। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, संगीत की कोई सीमा नहीं होती है, तो आप संगीत की शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित करना चाहेंगी?
संगीत संगीत हो चाहे कोई भी कला हो, जैसे पेंटिंग हो, किसी तरह की कला, डांस हो, इनकी सीमा होती नहीं है। अगर इनकी सीमा होती, इसका मतलब आपका शौक खत्म हो गया। ये जितनी बढ़ाई जाए उतनी ही उसको मतलब आगे बढ़ती जाएगी। और इससे सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जैसे मैं किसी को सिखाती हूँ सिंगिंग वगैरह, या मैं क्लासिकल सिखाती हूँ, गुरबानी सिखाती हूँ, गीत सिखाती हूँ, और मेरे को और भी ज्यादा आता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी कोई सीमा है ही नहीं, जितना आप बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगी। मैं ऐसे, जैसे अब मैं गा रही हूँ, वैसे मैं 9 साल की थी 1947 में, मैं वैसा ही गा रही हूँ। सो ट्रू। मैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लाना चाहूंगी, जो कि है, शिक्षा जगत में आपका बहुत नाम है। क्या आप हमसे अपने कुछ सुनहरे क्षणों को साझा करना चाहेंगी, जब आप अपने शिष्यों को देखकर भाव विभोर हुई होती हो? दिव्या जी, आपने तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है। मैं बच्चों को अप टू 5th स्टैंडर्ड तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते थे। तो मैं पढ़ाती थी सारे सब्जेक्ट, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को मैं क्या करती थी, पहले उनको समझा देती थी, अच्छी तरह उनके मन में डाल देती थी, फिर उसी सब्जेक्ट उसे क्वेश्चन आंसर को उनको मैं एक म्यूजिक दी ट्यून देकर ना, तो उनको सिखाती थी मैं। तो वो मैं साथ ही साथ उनके मैं नाचती रहती थी, उनको भी नचाती थी, उनको याद करवाती थी, स्पेलिंग याद करवाती थी। तो इस तरीके से बच्चों को दिमाग में इतने फिट हो गए थे ये स्पेलिंग और क्वेश्चन आंसर थे। जब मैं कॉपियां चेक करती थी, मुझे सोचती थी मैंने कहाँ से इनके नंबर काटूं। तो पेरेंट्स भी बड़े खुश होते थे। अब तक मुझे याद है कि मैं 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों को मैंने सिखाया था डोमेस्टिक एनिमल्स, वो ट्यून बनाई थी, शायद मुझे अब भी याद है। वो ट्यून थी कैट डॉग काउ बुफेलो हैन गोट शीप, ओए होए हैन गोट शीप, ओ बल्ले बल्ले हैन गोट शीप। तो ऐसे हुआ कि मैं एक बार 15 सेक्टर में फरीदाबाद में जा रही थी, तो पीछे से मेरे एक किसी बच्चे ने ना ये गाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये तो गाना मैंने कहीं सिखाया था। फिर वो बच्चा मेरे पास है, कहता मैडम आपका गाना आज दिन तक हमने बोले, हमके कई गाने, मेरे को मैं तो आपको कई तरह की एग्जांपल दे सकती हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है। वो बच्चे आज भी जब भी मिलते हैं, मैं फरीदाबाद जाती हूँ, पार्टियां करते हैं, और वो ही गाने जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडी के, स्पेलिंग्स के, उनको डिजाइन बना बना के सिखाती थी, वो आज तक उनको याद है। और वो कहते हैं कि यही तरीका हमने अपने बच्चों को सिखा दिया, हमारे बच्चे भी ऐसे ही याद करते हैं, और एकदम आपकी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। हाँ जी। आपका ये संगीत और शिक्षा को जोड़ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रेरणादायक माध्यम है। पिछले 25 वर्षों से आप अमेरिका में रह रही हैं, पर हमने सुना है कि आपको हिंदुस्तान की जमीन से बेहद लगाव है। दोनों ही देशों में आप अपने संगीत के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमसे कुछ अनुभव साझा करेंगी। दिव्या जी, जहाँ इंसान जन्म लेता है वो तो जिंदगी में कभी भूल भी नहीं सकता, राइट। अपना पंजाब, अपना अमृतसर, जहाँ से हमने एजुकेशन ली है, जहाँ से हमने सारी जिंदगी तकरीबन जब भी 25 साल वहीं गुजारे हैं, वो तो हमें भूलेंगे नहीं। लेकिन अमेरिका में आके भी हमने बहुत कुछ अर्न किया है। जैसे संगीत, यहाँ भी मैंने आके, आपको मैंने पहले बताया ना कि किसी भी पार्टी में गाती थी तो उन्होंने सुना, तो उसके बाद मुझे सबसे इनविटेशन आने लगा कि हमारी पार्टी में हो, हमारे हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम। तो इसी हिसाब से ना यहाँ भी मैंने म्यूजिक को ऐसे जिंदा रखा है, और म्यूजिक ने मुझे जिंदा रखा है। आज भी मैं उसी टोन में, उसी तरीके से ही गाती हूँ जैसे मैं पहले गाती थी। इसके मैं वाहिगुरु जी का कहो, भगवान का कहो, बड़ा थैंकफुल हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली, और ये बहुत सही है कि जहाँ भी जाएंगे हम अपनी जगह को याद करते हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ जहाँ से हमने अपनी एजुकेशन ली है, जहाँ से सब कुछ किया है, वहाँ वहाँ उस जगह को हम कभी भूल नहीं सकते। जी। भारत में किसी भी प्रकार की कला को पूजा तुल्य माना जाता है। इस विषय पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं। दिव्या जी, कला जो होती है, कला एक ऐसी चीज है कि इसको जितना बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगी। आई समझे। मेरा मतलब कहने का है कि
जैसे हम एक पेंटिंग करते हैं, जहां हम डांस करते हैं, एक बार इंसान को शौक पड़ जाए तो वो आगे आगे ही बढ़ती है, आगे आगे ही चलती है। तो उस वजह से मेरे को संगीत में बड़ा साथ दिया है। और इवन मैं तो डांस भी करती थी, पर मेरे डांस जो है ना वो थोड़ा अलाउ नहीं था उन दिनों में। तो मैंने अपनी बच्ची को डांस सिखाया, जो आज दिन तक वो ह्यूस्टन में अपना फंड रेजिंग में प्रोग्राम करती है। जसमीता सिंह है ह्यूस्टन। तो वो हर तरह के प्रोग्राम इसी डांस में करती है, गाती भी है। उसमें हर तरह का आर्ट दिया है मैंने क्या दिया है, भगवान ने दिया है, बाकी उसकी मेहनत है जो आगे आगे बढ़ती रही है अमेरिका में भी आकर। बिल्कुल सही बोला आपने। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का जो सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु जी को दूंगी कि जिन्होंने मुझे गाइड करा कि इसके साथ रहो, इधर जाओ या उधर जाओ। और ज्यादा करके मेरे फादर इन लॉ, जो अंडर सेक्रेटरी, अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज करा। और जामनगर में मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, हम वहां चले गए, वहां सेंट्रल स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई 73 में। वहां के प्रिंसिपल ने मुझे एनकरेज करा। मैं इन दोनों को लोगों को जिंदगी में अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकती। मेरा इनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। और इन लोगों ने मुझे इतना इनकरेज करा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती दिव्या जी। मेरा अब अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप हम बच्चों को अपने मीठे गले से अपने गायन रूप में कुछ संदेश दें। संदेश तो मैं प्रीत का ही दूंगी कि सबके सबसे प्रेम प्रेम से रहो, सब प्रेम बांटो, किसी के साथ कोई चीटिंग ना करो, झूठ ना बोलो, किसी को हर्ट ना करो, किसी का हक ना मारो। बस ये संगीत में, इसी संगीत में मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ। प्रीत तो प्रीत ही होती है, राइट। तो मैं सुनाती हूँ आपको गाना। मन में किसी की प्रीत बसा ले, हो मत वाले, हो मत वाले, मन में किसी की प्रीत बसा ले। प्रीत हंसाए, प्रीत रुलाए, जिया में आग लगाए, जलने वाला हंसते हंसते फिर क्यों जलता जाए, फिर क्यों जलता जाए। प्रीत के हैं अंदाज निराले, हो मत वाले, हो मत वाले, मन में किसी की प्रीत बसा ले। इस दुनिया में किसी का हो जा, किसी को कर ले अपना, प्रीत हंसाए, प्रीत सुलाए, एक सुहाना सपना, एक सुहाना सपना। प्रीत के हैं अंदाज निराले, हो मत वाले, हो मत वाले, मन में किसी की प्रीत बसा ले। वाह, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा संदेश था कि प्रीत सबको देनी चाहिए, सबको प्रेम के साथ रहना चाहिए। प्रीत ही की ऐसी चीज है जो एक पत्थर दिल को भी पगला देती है। लेकिन हम जब किसी को गलत बोलते हैं, जब गलत उसके बारे में बोलते हैं, अपना अपने वो वापस आता है, अपना ही मन अपसेट होता है। सो क्यों ना हम प्रीत बांटे, प्यार बांटे, अच्छा संदेश बांटे, सबको प्यार दें, ना कि किसी को किसी तरह का हर्ट करें। बस आपने बहुत जी, अच्छे क्वेश्चन पूछे दिव्या जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू। थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मैसेज मैम।
It is truly inspiring and will be helpful for everyone. With these concluding words, on behalf of Head's family, I express my gratitude to God for this incredible achievement of completing the 13th episode of Unheard Stories, The True Intellectual Warriors. For this wonderful initiative, I pay my heartfelt gratitude to the founder and managing director of Heads, Dr. Aruna Watkar. Special thanks to Chief Management Officer Dr. Anurup Kaur for inspiring me to conduct this session. This move is definitely going to inspire many of us. I am thankful to our guest, Ms. Devinder Kaur, for sharing her stories with all of us. I am obliged to all the other members of Heads for their unstinted support. Last but not the least, from the bottom of my heart, I'm thankful to all the audience present here.